یہ وہ رہنما ہے جو ظلم کو دور کر کے انسانیت کو انصاف سے حضرت دجال آزاد ہو گیا ہے۔ سمندر کے بیچ ایک پر اسرار جزیرہ اور وہاں زنجیروں میں قید ایک شخص جو انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ رہنما ہے جو ظلم کو دور کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ حضرت دجال زنجیر ٹوٹ آزاد ہو گیا ہے۔ فتنہ کا بادشاہ آزاد ہو گیا۔ سمندر کے بیچ ایک پر اسرار جزیرہ اور وہاں زنجیروں میں قید ایک شخص جو انتظار کر رہا ہے۔ وہ جزیرہ کے قید سے نکلا فتنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور پھر زنجیر ٹوٹ گئی، فتنہ کا بادشاہ آزاد ہو گیا۔ ڈوب جائے گی، جنگ، قتل اور فتنہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ وہ جزیرہ کے قید سے نکلا فتنہ سمندر کی لہروں کی طرح دنیا پر چھا گیا۔ جو چاہے میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔ وہ جنت اور دوزخ دکھاتا، بارش اور جب دجال نکلے گا دنیا افراتفری میں ڈوب جائے گی، جنگ، قتل اور فتنہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ تمہیں رزق دیتا ہوں، کون ہے جو میرے جیسا قدرت رکھتا؟ میں تمہارا رب ہوں، میرے ہاتھ میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، جو چاہے میں تمہیں ابھی دکھا جھوٹے کو سکتا اپنا ہوں۔ رب تسلیم کر لیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔ وہ جنت اور دوزخ دکھاتا، بارش برساتا اور انسانیت کو گمراہ کہ میں کرتا گیا۔ تمہارا رحم رب ہوں۔ دیکھو میں آسمان سے بارش برسا کر تمہیں رزق دیتا ہوں، کون ہے جو میرے جیسا قدرت رکھتا ہے؟ لوگوں نے ختنے کی آگ اتنی تیز اور اس جھوٹے کو ہزاروں انسان اس کے بادوں پر ایمان لے آئے۔ دیکھو یہ ہے دوزخ کی بھیانک آگ، یہ ہے جنت اور صرف میں ہوں جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں، جو صرف میری کیونکہ میں تمہارا رحم رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوں گے۔ فتنے کی آگ اتنی تیز تھی کہ ہزاروں انسان اس کے بادوں پر ایمان لے آئے۔ دیکھو یہ ہے جنت کے حسین باغ، ندیاں بہ رہی ہیں، جو صرف میری اطاعت کرنے والوں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دنیا بھر میں سوال اٹھنے لگے ہیں، اگر یہ شخص واقعی دجال ہے تو کیا اب وہ لمحہ بھی قریب ہے جس کا ذکر نبی نے فرمایا تھا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جلد نازل ہونے اور پھر جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم جلدی نازل ہونے والے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خوف ہوا۔ دنیا بھر میں سوال اٹھنے لگے ہیں، اگر یہ شخص واقعی دجال ہے تو کیا اب وہ لمحہ بھی قریب ہے جس کا ذکر نبی نے فرمایا تھا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جلد نازل ہونے والے ہیں؟ اور پھر جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم جلدی نازل ہونے والے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں ایک اجنبی خوف اتر گیا۔ ایک انسان ہے۔ عیسیٰ ابن مریم
चेहरे से बूंदें टपक रही थीं जो मोती की तरह चमक रही थीं। या अल्लाह तू रहमान हजरत तू रहीम, आपकी हुजूरी से इंसानियत जुल्म पर का राज अपना नूर खत्म नाज़िल होगा फरमा। और इंसानियत जुल्म का को राज सच खत्म और अमन हक मिलेगा। और सच इमाम को मेहदी कायम कर, जो हिदायत इंसान और सब्र सब्र के के रास्ते रास्ते पर पर दुनिया को ले जाएगा, फितना वही और आप झूठ हैं। को दूर आइए नमाज अदा और करते दुनिया हैं। को अमन और इंसाफ से नवाज़। और फिर सबसे या बड़ी जंग का अल्लाह, वक्त आ गया। तू रहमान ईसा तू इब्न रहीम, मरियम और इंसानियत दज्जाल पर अपना नूर एक ही नाज़िल मैदान फरमा। में सामने जुल्म खड़े का थे। राज खत्म कर, हक और सच को कायम कर, हिदायत और सब्र का नूर हमारी रूहों में भर दे, फितना और झूठ को दूर कर और दुनिया को अमन और इंसाफ से नवाज़। और फिर लोग उसके नारे लगा रहे थे, उसको अपना रब मानकर ईसा इब्न मरियम के खिलाफ जंग के लिए। और फिर सबसे बड़ी जंग का वक्त आ गया। ईसा इब्न मरियम इतनी और छोटी सी दज्जाल तादाद एक ही तुम्हारे मैदान सारे में इरादे सामने बस खड़े थे। हवा हो जाएंगे। और फिर लोग उसके नारे लगा रहे थे, ने फरमाया उसको अपना रब आदम से लेकर क़यामत ईसा इब्न मरियम के खिलाफ जंग के जाल से बड़ा फितना कभी नहीं आएगा। इतनी छोटी सी तादाद तुम्हारे सारे इरादे बस हवा हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक इंसानियत पर दज्जाल से बड़ा फितना कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ो, राज कायम करो। दज्जाल ने जैसे ही ईसा इब्न मरियम को देखा, उसके झूठे दावे टूट गए और वो जंग के बीच से भाग निकला। और जब ईसा इब्न मरियम उसके करीब गए, वो नमक पानी में घुलने जैसा पिघल और फिर बावजूद पर उसका अंजाम हुआ। हजरत, मेरी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ हक की राह चुनूंगा। हजरत, माफ कर दो। और तुम्हारा रब दज्जाल ने जैसे ही ईसा इब्न मरियम को देखा, उसके झूठे दावे टूट गए और वो जंग के बीच से भाग निकला। और जब ईसा इब्न मरियम उसके करीब गए, वो नमक पानी में घुलने जैसा पिघल गया और फिर बावजूद पर उसका अंजाम या हुआ। अल्लाह तू ही सबसे आला और तू ही इसका हजरत, मेरी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ हक की राह चुनूंगा। हजरत, माफ कर दो। और तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई फिर एक फरिश्ता ईसा इब्न मरियम को खबर देता है, याजूज और माजूज की दीवार टूटने वाली है, वो जमीन या पर अल्लाह फैलने वाले तू ही हैं, सबसे उनका आला तूफान और सब तू कुछ ही इस लपेट कायनात का असल मालिक। लोगों, अल्लाह का पैगाम आया है, वो कौम जिसका जिक्र तुमने सुना। और फिर एक फरिश्ता याजूज और ईसा इब्न मरियम को खबर देता है, और ईसा इब्न मरियम खुदा का पैगाम है, एक नया फितना उभरने को है। याजूज और माजूज की दीवार टूटने वाली है, अल्लाह वो की जमीन पनाह पर फैलने बनेंगे वाले तुम्हारे हैं, लिए। उनका सब तूफान लोग सब कुछ पहाड़ पर लपेट जमा लेगा। हो जाओ। और जब याजूज माजूज खोल दिए अल्लाह का जाएंगे, पैगाम आया है, वो हर वो बुलंद कौम जगह जिसका से जिक्र तुमने तेजी सुना से था। निकल पड़ेंगे। याजूज और माजूज अब कैद से निकल चुके हैं और इंसानियत के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आ रही है। भागो नहीं, ईमान के साथ चलना है। पहाड़ अल्लाह की पनाह बनेंगे तुम्हारे लिए। सब लोग पहाड़ पर जमा हो जाओ। और जब रुकावट टूट गई,
याजूज माजूज और जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे वो हर बुलंद जगह से तेजी से निकल पड़ेंगे। सब लोग जमा हुए दूर पर बैतुल मुकद्दस के करीब अल्लाह की पनाह के साए तले। अब उनकी लश्कर तालाब की तरफ चल पड़े और जब रुकावट टूट गई वो प्यास याजूज माजूज का हर बुझाई से उतर कर दुनिया पानी को निकलने आई थी। सब लोग जमा हुए दूर पर बैतुल मुकद्दस के करीब अल्लाह की पनाह के साए तले। और अगर हम तुम्हारा पानी जमीन के अंदर घुसा दें तो कौन है जो तुम्हें नया बहता हुआ पानी ला सके। वो फौज आई जिसने तालाब की तरफ चल पड़ी और पीछे वालों के लिए सिर्फ खाली वो प्यास जिसे जमीन का एक एक कतरा बुझा न सका अब पानी को निकलने आई थी। सूरा अल-मुल्क में अल्लाह फरमाता है और अगर हम तुम्हारा पानी जमीन के अंदर घुसा दें तो कौन है जो तुम्हें नया बहता हुआ पानी ला सके। वो फौज आई जिसने तालाब को भी सुखा दिया और पीछे वालों के लिए सिर्फ खाली मिट्टी बची थी। याजूज माजूज की लश्कर, उनका शोर, उनका जुल्म हर तरफ गूंज रहा है। पहाड़ों की ओर भाग के या अल्लाह क्या बच जाओगे? रहमान तू रहीम, हम आग की तरह और जल तेरे कर सिवा आएंगे कोई कुव्वत नहीं। और तुम्हारी उम्मत चीखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को लरज़ याजूज उठेगी। माजूज के जुल्म से बचा ले, अपनी कुदरत से उन्हें वो मिटा फौज, दे वो और खून हक की पर प्यासी कायम याजूज रहने वालों माजूज की को लश्कर, अपनी उनका पनाह शोर, उनका अता जुल्म फरमा। हर तरफ गूंज रहा है। अल्लाह ने उनकी गर्दनों पर अजाबी कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए। तू रहमान तू रहीम, और तेरे सिवा कोई कुव्वत नहीं। और उम्मत एक ही लम्हे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि याजूज वसल्लम माजूज को सब मिटा याजूज दिए। माजूज के जुल्म से बचा ले, अपनी कुदरत से उन्हें मिटा दे और हक पर कायम रहने वालों को अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह ने उनकी गर्दनों पर अजाबी कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए। याजूज माजूज के जिस्म जमीन को बदबू और गंदगी से भर देते हैं और फिर एक ही लम्हे शिद्दत याजूज माजूज सब जो उनके निशान मिटाकर उन्हें समुंदर के अंदर बहा देते हैं। याजूज माजूज के खत्म होते ही इंसानियत ने सुकून सोचा, लेकिन दुनिया को याजूज माजूज के जिस्म जो जमीन को बदबू और गंदगी से भर देते हैं। फिर अल्लाह एक शिद्दत भरी बारिश भेजता है जो उनके निशान मिटाकर उन्हें समुंदर के अंदर बहा देती है। सरकार ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। ये धुंध क्या है कोई नहीं जानता। याजूज माजूज के खत्म होते ही सिर्फ इंसानियत ने सुकून सोचा, उसने पूरे लेकिन दुनिया को ढक गया वो धुआं हर कोन जो अजाब बस कराए हर मुल्क उसके साए में दफन हो गया। ताज़ा खबर, एक रहस्यमयी काला धुआं दुनिया के कई शहरों में तेजी से फैल रहा है। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। ये धुंध क्या है कोई नहीं जानता। और फिर वो धुआं सिर्फ एक शहर तक महदूद न रहा, उसने पूरे जहां को लपेट लिया। आसमान से उतर हर कोना, हर बस्ती, हर मुल्क के शहरों को उसके साए में दबा हो गया। हर नजर